میں نے آپ کو دعا دی ہے، آپ کا بھی حق بنتا ہے مہمان کو دعا دیں۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ پر سلامتی کرے، وعلیکم السلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ تواڈے تے بھی سلامتی کرے۔ نبی کی سنتوں کو عام کرتا ہوں، دوبارہ سب کو سلام کرتا ہوں، محبت سے جواب دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء واکمل الانبیاء واحسن الانبیاء وامام الانبیاء وخاتم الانبیاء ومعصومین الانبیاء والمرسلین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل متاع الدنیا قلیل، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید، انک لعلی خلق عظیم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نصیب جاگے گا میرا درود پڑھ پڑھ کر، میں دیکھ لوں گا مدینہ درود پڑھ پڑھ کر۔ نصیب جاگے گا میرا درود پڑھ پڑھ کر، میں دیکھ لوں گا مدینہ درود پڑھ پڑھ کر۔ اڑائی اس کو فرشتوں نے چادر رحمت، جو سو گیا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر۔ جہاں کے سارے طبیبوں نے دے دیا تھا جواب، سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے، جہاں کے سارے طبیبوں نے دے دیا تھا جواب، مریض ہو گیا اچھا درود پڑھ پڑھ کر۔ راہ ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر، سلام تجھ پر، خدا سے بندے ملانے والے درود تجھ پر، سلام تجھ پر۔ ہر ایک مسلم کو اپنے الفت سے دہر میں سرفراز کر دے، ہر ایک مسلم کو اپنی الفت سے دہر میں سرفراز کر دے، محبتوں کے خزانے والے درود تجھ پر، سلام تجھ پر۔ ہر ایک انسان سے پیار تیرا، یہ تیرا خلق عظیم تر ہے، دشمن کو اپنا بنانے والے درود تجھ پر، سلام تجھ پر۔ تیرے صحابہ کی زندگانی تیری رفاقت کا آئینہ ہے، تیرے صحابہ کی زندگانی تیری رفاقت کا آئینہ ہے، ہر ایک کو مظہر بنانے والے درود تجھ پر، سلام تجھ پر۔ عقیدت، احترام، محبت، مودت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر حضور کا دیوانہ حضور پہ درود شریف تلاوت فرمائیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقے دل سے یقین کامل سے کہہ رہا ہوں، چڑھتے سورج کی طرح مجھے یقین ہے جتنے نبی کے غلام بیٹھے ہیں سب نے نبی پہ درود شریف پڑھا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، کس نے پڑھا ہے؟ دایاں ہاتھ اٹھاؤ جس نے درود شریف پڑھا ہے۔ اللہ درود کی برکت سے مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، پڑھتے رہا کریں، بہت پیارا عمل ہے۔ درود کی برکت سے بندہ مدینے کا مسافر بنتا ہے، درود کی برکت سے مدینے والے کا دیدار نصیب ہوتا ہے، درود کی برکت سے قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جتنے لوگ آئے بیٹھے ہو، یہی زندگی کا ثمرہ ہے، یہی زندگی کا سامان ہے کہ مدینے کا مقبول سفر نصیب ہو جائے، مدینے والے کا خواب میں دیدار نصیب ہو جائے، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور کیا چاہیے؟ یہی زندگی کا سامان ہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ مدینے کا سفر چاہیے، مدینے والے کا دیدار چاہیے، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ یہ صرف درود پاک کا عمل کرتے رہا کریں، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے نبی پہ درود شریف۔ ہمارے شیخ ہمارے محسن مفتی سعید حسن دہلوی صاحب، اللہ تعالیٰ بزرگوں کا سایہ ہمارے
हमारे सरों पे तादेर कायम दायम फरमाए। वो फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ ऐसा अमल है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ऐसे अमाल इंसान करता है, पता नहीं कबूल हुए या ना हुए, लेकिन दुरूद शरीफ ऐसा अमल है जिस हालत में भी पढ़ा जाता है अल्लाह कबूल फरमाते हैं, जिस हालत में भी पढ़ा जाए अल्लाह कबूल फरमाते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ शामिल हज़रात, हस्बे मामूल आज फिर एक मरतबा मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दिल के करीब रहने वाले मौलाना मोहम्मद इनामुल्लाह साहब का हुक्म था, बस हुक्म की तकमील में यहाँ तक पहुँच गया। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीन मानिए आप अच्छे लोग हो, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी शरीक होता है। सरकार की महफिल में बैठने वाला हर इंसान खुश नसीब होता है। नबी की महफिल में रात के इस पहर में बैठे हो, किसी ने मजबूर किया है, किसी ने मजबूर किया है, किसी ने मजबूर नहीं किया। रात के इस पहर में नींद को छोड़ा है, अपने अपने काम काज को, मसरूफियात को छोड़ा है। छोड़ा किसके लिए है? मदीने वाले के लिए है या सहाबा के लिए है, और कोई नहीं है। हुजूर का जिक्र हमारी तारीफ का थोड़ा मोहताज है जी, हम नबी का जिक्र करें तो नबी का जिक्र जी हमारी तारीफ का मोहताज है। नहीं, नबी का जिक्र हमारी तारीफ का मोहताज नहीं, हम नबी के जिक्र की तारीफ के मोहताज है या नहीं है? हम नबी की तारीफ के मोहताज हैं, और नबी का जिक्र, नबी की तारीफ अपनी बख्शिश के लिए करते हैं, सहाबा की तारीफ अपनी बख्शिश के लिए करते हैं। अल्लाह करे एक बंदा भी अमल करने वाला बन जाए तो सबके लिए इंशाअल्लाह निजात का दरिया बन जाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ शामिल हज़रात, बड़े इत्तेफाक से सारे भाई आए बैठे हो, अल्लाह सबको सलामत रखे, खुश रखे। अभी भाई ज़फ़र शहज़ाद साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं, बस उसी के दरमियान में इंशाअल्लाह 2-4 मिनट की बातें मेरे साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। और मैं कहता हूँ मुझे यकीन है इंशाअल्लाह सब चलेंगे। अल्लाह ने तौफीक दी है, ज़बान दी है, दुनियावी बातों के लिए नहीं, अल्लाह ने अपने जिक्र के लिए दी है। तो आज रात हम हुजूर के और सहाबा के नाम कर देते हैं, साल के बाद ये महफिल होती है। जरा मेरे साथ एक मर्तबा नारे का जवाब दे पूरा मजमा, नारा तकबीर। हद होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्त तो शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारा तकबीर तो लाओ। जितनी जो बंदा नेक तमन्ना लाया है अल्लाह तुझे पता है, मुझे नहीं पता, तू जानता है। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। या अल्लाह महफिल की बरकत से अल्लाह उस बंदे की हर नेक तमन्ना को पूरा फरमा दे। अब जो बंदा रब के लिए बोल सकता है, हाथ उठा सकता है, दोनों हाथ उठा के बोले नारा तकबीर, नारा तकबीर। और हज़रात तवज्जो, सारे लोग आए बैठे हो, तमाम मसालिक के लोग, बड़ी तवज्जो दिलो जामे के साथ बात कराओ। हमारा मसला, इब्तिदाई मसला जो ईमान का मसला है वो मसला खत्म नबूवत है। नमाज बाद में, रोजा बाद में, हज बाद में, ज़कात बाद, सारे अमाल बाद में है, अकीदा खत्म नबूवत पहले है। अकीदा खत्म नबूवत है। मैं हज़रात में हाथ जोड़ता हूँ, कसम खुदा की, हर रात, हर रोज, हर महफिल में सामीन के सामने हाथ जोड़ता हूँ, अपनी औलाद का अकीदा दुरुस्त करो, अपना अकीदा दुरुस्त, क्योंकि अकीदा है तो सब कुछ है, अकीदा नहीं तो कुछ भी नहीं। कब्र में सबसे पहले अकीदा पे बात होगी, अकीदा ठीक होगा तो सारी मंजिलें आसान होगी। जिन भाई का अकीदा है दोनों हाथ उठाए, जामिया हनफिया क्या नारंग मंडी के तरफ दीवार जोड़ने चाहिए। खत्मे नबूवत के दीवाने रात के पहर में नबी के लिए हाथ और उठा के ज़बान खोल के नारे लगा रहे, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। या अल्लाह तू गवाह हो जा, या अल्लाह तू गवाह हो जा। बरेलवी मसलक है, अहले हदीस मसलक है, देवबंदी मसलक है, जितने लोग आए हैं अल्लाह तेरे घर में बैठ के ये कह रहे हैं हमारी औलाद बाद में, रोजा बाद में, हज बाद में, ज़कात बाद में, औलाद बाद में, माल बाद में, नबी की खत्म नबूवत पहले है। औलाद क्या चीज है, माल क्या चीज है, वालिदैन क्या चीज है। नबी की खत्म नबूवत के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। कहने वाले ने कहा था चंगा कम करके देखी, जितनी बाती हार के देखी, दुनिया पीछे हर कोई मरता, नबी के नाते मार के देखी। अब बोले सारा मजमा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। या जिस बंदे का हाथ नबी के लिए उठ जाए, क़यामत के दिन वो हाथ नबी के हाथ में आ जाए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आपको सलामत रखे, खुश
कुछ रखे। पर इसी इख्तिताम के साथ मैं बड़ी मोहब्बत से आवाज दे रहा हूँ, आपने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह की तौहीद है, फिर बाद में रिसालत मुस्तफा, आखिर में शान सहाबा अहले बैत में मैं इख्तिताम कर दूंगा। पहला जुमला मैं पढ़ता हूँ, जिसके दिल तक ये बात पहुंचा। पंजाबी का मकूला है, जिंदा खाइए ओंदा गाइए, जिंदा खाइए ओंदा गाइए। तो पहला जुमला अल्लाह की तौहीद का पढ़ रहा हूँ। सारे तौहीद परस्त बैठे हो, सारे मवाहिद बैठे हो, मेरा जुमला आपके दिल तक पहुंच जाए तो फिर बंदा मजबूर ना बोले, खुश बंदा बोले, और वो बंदा बोले जिसको अल्लाह ने बिन मांगे ज़बान अता फरमाई है। जरा एडवांस कहे सुभान अल्लाह। मैंने कहा मजबूर बनने से मेरी बात नहीं है, खुश बंदा बोले जरा सुभान अल्लाह। जो है मैं जुमला पढ़ रहा हूँ पंजाबी के अंदर। हजरत मौलाना इस्माइल साहब, हजरत मौलाना इलियास साहब, बड़ी तवज्जो से, बड़ी तेजी से, बड़ी जल्दी से मैंने सफर करना है और मुझे पता चले मैं नारंग मंडी में खड़ा हूँ। बड़ी अकीदत के साथ पहली मर्तबा नहीं आया, पहले भी आया हूँ। आपकी मोहब्बत बताएगी। शुरू होने ना तो मैं गल करना चाहना, शुरू होने ना तो हम जलसे का आगाज अल्लाह के नाम से करते हैं, खाना खाने का आगाज अल्लाह के नाम से करते हैं, पानी पीने का आगाज अल्लाह के नाम से करते हैं, काम का आगाज अल्लाह के नाम से करते हैं, सफर का आगाज अल्लाह के नाम से करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस काम का आगाज अल्लाह के नाम से किया जाए वो काम पाया तकमील तक पहुंचता है, उस काम के अंदर अल्लाह की मदद होती है। तो आपने जलसे का आगाज तिलावत से किया है, मैं जुमलों से पढ़ रहा हूँ। शुरू होने ना तो मैं गल करना चाहना, मसले सारे में हल करना चाहना। जो नाराब फुल्ला ने कलियां दरा पे, जो नबियां रसूला ने बलियां दरा पे, खलीले सभी है कि मूसा कलीमे और सारे करीमा तो बड़ा करीम। तवज्जो चाहिए। अब फिर दूसरे पे बोलना, मोहब्बत से बोलना। शुरू होने ना तो मैं गल करना चाहना, मसले सारे में हल करना चाहना। जो नाराब फुल्ला से कलियां दरा पे, जो नबियां रसूला के वलियां दरा पे, खलीले सभी है ते मूसा कलीमे और सारे करीमा तो बड़ा करीमे। जेड़ा उन्नू लब्बे जरूर उन्नू मिलता, पर नाहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था इल्म पर असराफ ना होमन, जेड़े होमन असल कमीने शूम बोलो कदे चैन नहीं होता, पावे होमन रख सती ने पित्तल कदे सोना नहीं बनता, पावे जरिए बेच नगी ने बिन तौहीद बुलिया जन्नत नहीं मिलनी, पावे मरिए बेच मदीने। शुरू होने ना तो मैं बोला, मुझे चलने दे अभी। शुरू होने ना तो मैं गल करना चाहना, मसले सारे में हल करना चाहना। जो नाराब फुल्ला से कलियां दरा पे, जो नबिया रसूला से बलियां दरा पे, खलीले सभी है मूसा कलीमे और सारे करीमा तो बड़ा करीमे। जेड़ा उन्नू लब्बे जरूर उन्नू मिलता, उनके हुक्म तो बगैर पत्ता नहीं हिलता। पानी उनके वर्गा बना कोई नहीं सकता, हवा उनके वर्गी चला कोई नहीं सकता। पानी उनके वर्गा बना कोई नहीं सकता, हवा उनके वर्गी चला कोई नहीं सकता। जिंदी शान अगला तो पोती बनाए, मिसल जिंदी कोई नहीं हो साडा खुदा है, मिसल जिंदी कोई नहीं हो साडा खुदा है। मेरा मालिक कौन है? मेरे मौला तू चाहे तो मट्टी के पुतले को मजूदे मलाइक बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो इंसान को कलम के जरिए इल्म अता कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो आकर के घर इब्राहिम पैदा कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो नारे नमरूद को गुलजार बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो एडी के रगड़ने से जमजम के चश्मे जारी कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो 90 साल की सारा के घर इसहाक पैदा कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो 40 साल के बाद याकूब की बिनाई लुटा दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो मिस्र के बाजार में बिकने वाले यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो वादी हैमन को मुकद्दस बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो बगैर बाप के ईसा को पैदा कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो यतीम पैदा करके नबियों का इमाम बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो नबी की 5 उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो नबी की उंगली के इशारे से काट के तो टुकड़े कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो नबी की उंगली के इशारे से पत्थरों को कलमा पढ़वा दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो आयशा पर लगने वाली तोहमत सफाई में कुरान की आयत नाज़िल कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो एक जाफर की हड्डियां 1400 सहाबा के लिए काफी कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे एक दूध का प्याला 70 सहाबा के लिए काफी कर दे, मौला
بولے سبحان اللہ. یار ہم نے ابو بکر کو روزے میں سلایا ہے, ہم نے ابو بکر کو روزے میں سلایا ہے, ہم نے عمر کو روزے میں سلایا ہے. دنیا روتی رہے, دنیا چیختی رہے, ابو بکر عمر کو روزے میں سلا دے تو مولا تو ہی تو ہے. میں نک دی گل بھی نال کر دما, میں ہور کر دما. ابو بکر عمر کا غلام ہوئے بندہ خاموش نہیں رہ سکتا. توجہ, یارا دی یاری قرآن مل گئی ہے, نگاہ ہے نگاہ کو نگاہ مل گئی ہے. بابا جی چھاتو جانی چمن دی اجازت نہ ملے انہاں نوں تے سومن دی جان مل گئی ہے. سارے ختم نبوت, سارے صحابہ, نعرہ تکبیر. سارے آکو سبحان اللہ. بڑی گل کرن لگا, جڑا بندہ شیخین نو ماندا ہے, ابو بکر عمر کو شیخین کہتے ہیں. حضرات علماء کے قدموں پہ ہاتھ, مولانا میں قدموں پہ ہاتھ رکھنے لگا ہوں. میری یہ تعبیر ہے, میں محبت سے پڑھتا ہوں, میں پیار سے پڑھتا ہوں, خدا کی قسم اللہ کی توفیق سے پڑھتا ہوں, سبحان اللہ کی توفیق سے پڑھتا ہوں. چوتھے مصرے پہ یا تو میں مائک چھوڑ کے نیچے بیٹھ جاؤں گا, یا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے اظہار صداقت کرے, بڑا ہے چھوٹا